Good morning, all of you. Today we are going to start up with the next chapter, that is chapter number 2. The name of the chapter is Accounting Terminology. Accounting Terminology. I have told you in the previous class also that in this subject, because it is a very much new subject for you, there are a number of words which you may be hearing for the first time. So before starting on with the process of accounting, we should be very much aware about the terminology, the terms which are purely made for accounts, right? So we are going to study those terms one by one, and in case you have any doubt, you can ask me. Okay? First is business transactions. Okay, so this term we have already studied while we studied about accounting process. The accounting process बेटे जब हमने पढ़ी थी, it began with business transactions. So I hope you are already clear with this term. What is the meaning of business transaction? You are supposed to, while I will be explaining you are supposed to write like in short. जो notes आपके होंगे, आप short में लिख लीजिए in the language which you can understand. And the typical notes of this chapter I will provide you on my own. I have made notes. I'll share the notes of this chapter with you later on, not now. Now you are supposed to write these terms, which all terms we have covered and what is the meaning. In short, you can write. Okay, so any one of you can raise the hand and tell me what is the meaning of business transaction. Okay, Yadvi want to answer. Yes, Yadvi, you can unmute yourself and answer. Yes, ma'am. Purchasing and selling of something, not for personal purpose. Okay, so two things are there. Number one, which is not for personal use, that is for the business use. And the other thing is that it involves something like you said, purchase and sale. It may not be purchase and sale, but it may be any event, any transaction which is related to business. Number one, and Jaskaran also want to say something. Yes, Jaskaran. Any event with the third party which is recorded in the accounting system of the organization, that is for business transaction. So how do you decide that it will be recorded or not recorded? मैम क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो अगर हम किसी से बिजनेस करेंगे तो वो दूसरे के या हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड हो गई. Okay, you are right. Actually, I was not asking. I got it. I was asking that how will you define that this transaction will come and this will not? The one only point which you have left, that is that if it is of financial character, if it is calculated in the terms of money, then we will write. If it is qualitative in nature, then we will not write. Okay? Even with the third party, we may have had a contract earlier. Now we breach that contract. That contract is cancelled. So will it be recorded in the books of accounts? No, because there is no financial, like we can't measure it in the terms of money. So we will not write. So दो बातें आपको already बताई हुई है. Number one, it should be calculated in terms of money. Number two, that it should be related to the business. So what is business transaction? Any event, any contract with the third party, which business has with the third party, which can be calculated in terms of money, which affects the financial position of the business, which affects the financial position of the business. Even though किसी ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, हमने उसकी सैलरी पे करी. Even though इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, हमने उनको पेमेंट करनी. मे बी हमने पेमेंट नहीं की, but even if we have not paid, it will become our liability. We will pay it later, but it affects our financial position. So it is not necessarily that it is in cash. It can be credit transaction, but credit and cash, both transactions will be recorded. So is it clear what is a business transaction? If you want to write, I can make you to write the one simple sentence. Any dealing or contract with the of the business with the third party, which is of financial nature, is called as business transaction. ठीक है जी?
शॉर्ट में आप लिख लीजिए, नोट्स आई प्रोवाइड यू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? Account or accounts. So when we are talking about account, what is the meaning of account? See, while preparing books of accounts, 1000+ transactions are there. Okay, so all the transactions are not recorded at one single place. Got it? If you remember, I have already told you the recording of the transactions is made in journal. If you have forgotten, then let's do it once more. एक जर्नल के नाम से बुक बनाते हैं जिसमें हम A, B, C, D, E, F सबकी एंट्रीज लिख देते हैं, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग. But it will become difficult for the accountant to see all these transactions later. So at the same time, posting is done, classification is done, and classification I have told you how it is done. A का account अलग, B का अलग, C का अलग, D का अलग, like this. The transactions, for example, here A का amount था 100, so that 100 is recorded here in A's account. B का amount था 150, so this is recorded here in B's account. C का amount था 50, so it is recorded here in C's. So what is this account? क्या होता है? When we classify the transactions on the basis of one particular head. For example, ये A का account, B का account, C का account. Similarly, there can be cash का account. There can be machine का account. There can be furniture का account. So whatever item, जितनी भी 1000+ items अगर है, every transaction, every item will be recorded separately under a particular head. It is called as account. Got it? In one line you can write. Short form में just आपको idea देना है मुझे. What is an account? It is the record of transactions related to a particular head. It is the record of transaction related to a particular head at one place. ठीक है, जैसे कैश के साथ रिलेटेड whatsoever transactions were there, सबको एक जगह लिख दो. क्रेडिट के साथ रिलेटेड जो थी एक जगह लिख दो. सिमिलरली कोई भी एक नेचर, मतलब कोई भी एक टाइप हो सकता है, उसको सेपरेटली लिखते, दैट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट. ठीक है जी, एम आई क्लियर? डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन. ओके, नेक्स्ट वर्ड व्हिच वी आर गोइंग टू राइट, इट इज प्रोपराइटर. It is proprietor. What is the meaning of proprietor? अगर आपने कभी देखा हो, so this proprietor is written as prop. PROP करके आपने कभी देखा होगा. विजिटिंग कार्ड पे शायद आपने देखा, विजिटिंग कार्ड देखा होगा कभी. Many of you, your parents may be doing some business, so they may have made their business visiting card. So on the visiting card you may have seen, for example, एक शॉप है, उसका नाम है शिव शक्ति कॉस्मेटिक्स से या शिव शक्ति जनरल स्टोर. सो दैट इज द नेम ऑफ द शॉप. उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है. ओके, हरमन वांट्स टू से समथिंग. यस हरमन. Ma'am, the owner of a business is right, proprietor. Very right. Proprietor. So I was telling you how the name is being mentioned. For example, you are going to a shop, the name of the shop is written on the visiting card, the items they are providing, it is written. Also at the bottom of the visiting card or at the top of the visiting card on right top corner, sometimes they have written like this, Prop सुनील कुमार. एग्जांपल ले रही हूं. तो जो दुकान है शिव शक्ति कॉस्मेटिक्स, वो दुकान का नाम है. ओनर का नाम क्या, हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, इट इज सुनील कुमार. और उसके नाम के आगे प्रॉप लिख दिया. प्रॉप मींस प्रोपराइटर. हु इज द प्रोपराइटर? हु इज द, he is the owner of the business who has invested money in the business. Who has invested money, who is taking the risk, who is the wholly solely उसका जो ओनर है. There may be more than one owner. ऐसे भी होता है कई बार, जैसे अगर थोड़े बड़े दुकान की बात करें या थोड़े बड़े बिजनेस की बात करें, तो समटाइम्स
आप किसी शॉप पे गए, फॉर एग्जांपल शिव शक्ति की शॉप पे गए आप, वहां पे जो सेल्समैन है उसका नाम है मोहित, तो मोहित हैज गिवन यू अ कार्ड, you will ask him what is your name, he will say my name is Mohit, I am a salesman here, he is giving you the visiting card, but on that visiting card Mohit's name will not be there. Whose name will be there? Who is the owner of the shop, his name and his number will be there. Sometimes it happens that Mohit's number may also be there, कि ओनर कहता सारे फोन मैं नहीं सुन सकता, चलो मोहित का नंबर डाल दो, बट नेम ऑफ द प्रोपराइटर विल बी सुनील कुमार नेम. ओके जी, क्लियर है बेटे? You want to write, you can write. Please write in one line. Proprietor का क्या है? Proprietor is the owner of the business who has invested money and undertaken the risk. ठीक है जी, क्लियर है बेटे? और इफ यू वांट टू राइट इट मोर, यू कैन राइट इट लाइक you. Yes, Balpreet, you want to ask something? Yes बेटे. मैम ये मोहित और सुनील वाला फिर से बताना. ओके बेटे, वो मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल अगर एक शॉपकीपर है या एक कोई बिजनेस है, उसमें एक ओनर है, एक सेल्समैन है, तो आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, विजिटिंग कार्ड पे मालिक का नाम होगा कि सेल्समैन का नाम होगा? Whose name will be there on the visiting card? Obviously the name of the owner of the business. Proprietor तो सुनील कुमार ही रहेगा ना, जो prop है उसका ओनर है, तो his name will be written on the visiting card. और जो सेल्समैन है, his name will not be there. Sometimes उसका फोन नंबर वहां पे होता है. If you want to contact, तो ओनर चाहता है कि मुझे कॉल ना आए, तो वो अपने सेल्समैन का नंबर भी डाल दे. अगर बहुत बड़ा बिजनेस हो, जैसे अगर आप सिटी में जाओ तो कई बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर्स जिसके पास मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक आता है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, तो समटाइम्स इतने बड़े बिजनेस में उन्होंने अपने सेल्समैन के विजिटिंग कार्ड भी रखे होते हैं. तो सेल्समैन के लिए भी सेपरेट विजिटिंग कार्ड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सेल्समैन मोहित, नॉट द प्रोपराइटर. जो उसका अपना विजिटिंग कार्ड होगा उस पे लिखा होगा प्रोपराइटर दिस. सो प्रोपराइटर इज द नेम ऑफ द ओनर. वो मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दी, ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं. प्रोपराइटर क्लियर हो गया? ही इज द वन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी. नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है एमएस. आपने ऐसा कहीं पढ़ा होगा, समटाइम्स ऐसे लिखा था एमएस, कुछ भी नाम लगा दो, एमएस राम एंड सन्स. ठीक है, एमएस करके आपने कहीं पढ़ा होगा कभी, न्यूज़पेपर में मैंने कई बार देखा है, वहां पे कोई ना कोई एड्स आती हैं, कई बार जॉब के लिए, कई बार उनको कोई और रिसोर्सेज चाहिए, तो एमएस करके हम लिखते हैं. जैसे अब इसका मतलब समझा देती हूँ. राम एंड सन्स किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी नहीं मतलब एक फर्म है, तो उस फर्म ने अपने नाम के आगे एमएस लगा रखा. अब अगर कोई लड़का होता, फॉर एग्जांपल हरमन इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई विल राइट मिस्टर हरमन. ऐसे लिखूंगी, मिस्टर हरमन ही लिखते हैं ना बॉयज को, और लड़की एक मेरी स्क्रीन पे दिख रही है सिफतप्रीत, तो आई विल राइट मिस सिफतप्रीत. ऐसे लिखते हैं बेटे. लड़का होता है तो उसके नाम के आगे मिस्टर लगा देते हैं, अगर लड़की होती है तो हम उसके नाम के आगे मिस लगा देते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, ये है हमारा एक बिजनेस, तो बिजनेस लड़का होता है कि लड़की होती है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसको भगवान ने नहीं बनाया. ये दोनों नेचुरल पर्सन है, भगवान ने बनाए. नेचुरल पर्सन इसको हम बोलते हैं बिजनेस की टर्म्स में. दीज टू आर नेचुरल पर्सन, बॉयज आर मिस्टर, गर्ल्स आर मिस, एंड दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय लॉ. सो आर्टिफिशियल पर्सन के नाम के आगे एमएस लगता है, जिसको मेसर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेसर्स. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट. दिस इज द एब्रिविएशन व्हिच इज यूज्ड टू राइट इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस, दैट इज मेसर्स राम एंड सन्स. इस तरह से इसको बोलते हैं. क्लियर है बेटे? आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, बुक में नहीं लिखा हुआ है.
ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, इसको रब कर रही हूँ, डाउट होगा तो आप मेरे को साथ साथ पूछते जाइए। फिफ्थ इज प्रोप्राइटर, हो गया कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? सी वेरी सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, कल परसों भी हम पढ़ रहे थे। ओके, अंशुल वांट्स टू आंसर। यस अंशुल, you can unmute yourself Anshul. Yes. Capital is the amount invested in an enterprise by the proprietor. By the proprietor, very good. It is the amount which is invested in the business by the proprietor. तो proprietor बनता कैसे है? मालिक कैसे बनता है किसी बिजनेस का? जब वो उसमें पैसा लगाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस, तो मैंने उसमें 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, तो आई विल बिकम द प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिजनेस, ओनर ऑफ दैट बिजनेस. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन यू कैन राइट. इट इज द इन्वेस्टमेंट, लिखिए, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. It is the investment made by the owner of the business in the form of cash or kind. ठीक है, it is the investment made by the owner of the business in cash or kind. अब ये नए words आ गए. What is the meaning of cash? You all know. 5 लाख रुपीस मैंने बिजनेस में लगाए, that is cash investment. अगर मैं kind means मैं cash नहीं लगा रही, मैं कुछ और लगा रही हूँ बिजनेस को. फॉर एग्जाम्पल, उस बिजनेस के लिए जो मेरी फैमिली लैंड था ना, मैंने वो भी उस बिजनेस में लगाया, उस लैंड के ऊपर बिजनेस शुरू किया. मेरे घर पे जितना फर्नीचर था एक्स्ट्रा, मैंने वो सारा बिजनेस में डाल दिया. मेरे घर पे 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा खड़ी थी, मैंने वो भी बिजनेस के यूज के लिए लगा दी. सो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? लेट्स राइट. मैंने कैपिटल कितनी लगाई? कैश लगाया 5 लाख रुपीस. कार थी मेरी 2 कार्स of rupees 7 lakh for example, और फर्नीचर था ज्यादा नहीं तो 40,000 उनका वैल्यू उनकी बनती थी. तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी बिजनेस में हुई. कितनी हुई टोटल इन्वेस्टमेंट? 5 lakh plus 7 lakh, 12 lakh plus 40,000. So my total capital investment in the business is 12 lakh 40,000 rupees. Clear everything? What is the meaning of capital? Capital is the investment made by the owner. The investment may be in the form of cash or kind. Cash किसको कहते हैं? कैश को. और kind किसको कहते हैं? Other than cash कुछ भी डाला हो तो उसको kind बोलते हैं. It may be car, it may be furniture, it may be something else. Clear है? Okay जी, रब कर दो. ऐसे समझाने के लिए लिखा है, समझ आ गया. Next is the next term is, okay, one more thing. यहाँ पे I forgot to tell you. कैपिटल में एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ. ये जो कैपिटल है बेटे, दिस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. इसको हम क्या ट्रीट करते हैं कैपिटल को? इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अब आप बोलोगे लायबिलिटी तो मैम कुछ और होती है. क्या होती है लायबिलिटी? चलिए आप बताइए, हैंड रेज करिए, किसको आता है? व्हाट इज द लायबिलिटी? ओके, 2 बच्चे सेम बच्चे ही हाथ खड़े कर रहे हैं. ओके, वासु यू कैन आंसर. हम उधार जो हमने देना होता है, जो हमने उधार देना. वेरी गुड. अब उधार, ये तो ओनर ने पैसा लगाया, तो क्या ही उधार है? इज इट अ लायबिलिटी? यस. नो मैम, ये नहीं लायबिलिटी है, ये एसेट में जाएगी. ये क्या है? एसेट है. ओके, चलिए ठीक है. You are clear as per your knowledge. Let me clarify this point also. अब accounts की language में ये उधार है. According to accounts, according to law, this is a liability. How come it is possible? See, this is the owner of the business and say this is the business. ठीक है जी, लग नहीं रहा वैसे, पर चलिए ये बिजनेस है. ये क्या है? इसका नाम हम ऐसे रख देते हैं, ABC लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है. और ये कौन है? ये बंदा है मिस्टर ए. इसके नाम से कंपनी चलाई है इसने. ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस,
he is the one who has invested money in this business. लेकिन हमारा कंपनी लॉ कहता है, हमारी अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी अकाउंटिंग की थ्योरी है, वो ये कहती है कि ये बंदा अलग है, ये बंदा और इसका बिजनेस अलग है, ये दोनों जो है वो क्या है, सेपरेट है। इसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है। अब मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कल को अगर मिस्टर ए ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया इसने, कोर्ट में प्रूव भी हो गया ही इज मर्डरर, इसको फांसी की सजा भी होगी, नाउ ही इज गोइंग टू हैंग टिल डेथ, इज हिज बिजनेस इज आल्सो गोइंग टू बी हैंग टिल डेथ? उसके बिजनेस को भी फांसी की सजा होगी क्या? हिज बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन? यू से, व्हाट डू यू थिंक वासु? Okay. Yes, ma'am. So his business will be shut down. This is what you believe? उसका कोई बेटा, बेटी, बीवी, भाई कोई नहीं होगा इस मिस्टर ए का? अगर ये मर जाएगा तो इसके बिजनेस को क्यों बंद करना? उसके भाई बहन कोई ना कोई तो होगा उसकी फैमिली में. They will run this business. ठीक है? Yes, ma'am. So his survival doesn't affect the business. For example, एक और एग्जांपल ले लो. ये बिजनेस चल रहा था, इस बिजनेस ने कुछ गलत कर दिया, बिजनेस में कुछ गलत हो गया। फॉर एग्जांपल, कोई केस हो गया बिजनेस के ऊपर, किसी भी रीजन से, जो भी रीजन हुआ, केस हुआ बिजनेस पे और ये बिजनेस शट डाउन हो गया। कोर्ट ने कहा बिजनेस बंद करो, ये नहीं चल सकता, तो क्या ये बंदा मर जाएगा? इज ही गोइंग टू डाई? ये भी बंद हो जाएगा? ये कि मुझे भी जेल में डालो, मेरा बिजनेस बंद किया, मैं नहीं जी सकता, ऐसा तो नहीं है ना। सो लॉ कहता है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर ये बंदा अपने बिजनेस को 12 लाख रुपए की कैपिटल देता है, कितने पैसे दिए इसने बिजनेस को? 12 लाख रुपए। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वापस करें उसका पैसा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी। द अमाउंट व्हिच इज गिवन बाय मिस्टर ए टू द बिजनेस इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, बट इट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल लायबिलिटी। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारे बिजनेस के अंदर की है, बाहर से नहीं है। ये लायबिलिटी हमने कोई उधार नहीं लिया, हमने कोई किसी से लोन नहीं लिया है, ये हमारे ओनर ने हमें पैसा दिया है बिजनेस को। मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस कहता मेरे पास 12 लाख रुपए आए, कहां से आए? मेरे ओनर ने इन्वेस्ट किया। So that investment which is made in the form of cash or kind by the owner in the business is a type of internal liability for the business and business needs to return it back. अगर बिजनेस वापस नहीं करता है तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा कि तुमने मेरे में 12 लाख रुपए लगाए थे, ये लो उसका इंटरेस्ट ले लो, तुमने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ये लो उसके बदले में प्रॉफिट ले लो। समझ गए? आपने कोई बिजनेस लगाया 12 लाख रुपए लगा के, तो वापस दोगे ना, कुछ लोगे वापस। आप बोलोगे मैडम यही तो है, सब कुछ करता करता तो इसी का ये सारा कुछ, तो दैट इज ट्रू। बट अकाउंट्स कहता है कि भले इसका सब कुछ है, बट ही हैज टू गिव इट अ नेम। किस नाम से पैसा लिया? इंटरेस्ट के नाम से लिया, कि मैंने जो 12 लाख लगाए उसका इंटरेस्ट दो, मैंने जो एफर्ट किया उसका प्रॉफिट दो, मैंने जो रिस्क लिया उसके बदले में गेन दो। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? सो लायबिलिटी होती है हमारी कैपिटल, याद रहेगा सबको? प्लीज राइट इट सेपरेटली। Capital of the business, capital is the internal liability for the business. Dipinder Singh want to ask something. Yes, bete. वो सारे पैसे तो एक आदमी के ही हैं, वो अपने आप को ही कैसे पैसे दे रहा है? Can you please repeat? मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से। वो सारे पैसे तो उसके ही हैं, वो अपने आप को ही कैसे पैसे दे जा रहे हैं? वही तो बात है बेटे। आप जैसे मैं अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारा स्कूल जो है स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में प्रिंसिपल मैम से लेके नीचे तक सारे लोग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है? एवरीवन इज गेटिंग सैलरी, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस, हु आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। सो देयर इज एन आश्रम, देयर इज अ सोसाइटी, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। सो व्हाट आर दे अर्निंग फ्रॉम द स्कूल और द बिजनेस? व्हाट आर दे अर्निंग? दे आर आल्सो गेटिंग सम मनी। सो इफ दे विल से कि नहीं ये तो स्कूल हमारा ही है, अकाउंटेंट को बोले दे, जो फीस से निकली ना, बच्चों ने फीस दी, हमें दो, हम अपने घर जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो कैन दे टेक इट लाइक दैट?
देयर इज अ रूल एंड रेगुलेशन फॉर एवरीथिंग। अकाउंटिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स बने हैं। इवन ओनर ने एक बार जो पैसा लगा दिया वो बन गया कैपिटल। अगर वो अपनी कैपिटल विड्रॉ करना चाहता है, ही कैन डू, बट देन ही हैज टू गिव इट इन, मतलब रिटर्न में रिकॉर्ड रखता है, कोड है हमारे पास, लॉ है। आप अपने ही बिजनेस से पैसा निकालना चाहते हो तो यू हैव टू राइट समवेयर, क्योंकि ऐसे तो तुम रोज रोज पैसा अपने बिजनेस से लेते रहोगे तो खा के खत्म हो जाएंगे। आप में से कई बच्चों के पापा या मम्मी बिजनेस करते हैं तो उनको पता होगा कि ऐसे बिजनेस में से पैसा निकाल के पापा आपको नहीं दे देते, ये लो बाइक ले लो नवी, तुम नया फोन ले लो, नया लैपटॉप ले लो, ऐसा नहीं होता है। और अगर वो निकालते हैं, दे गेट इट लाइक दिस। ओनर्स ने अपनी सैलरी रखी होती है, कितना हमारा सैलरी का पैसा हम निकाल रहे हैं, इतना हमने जो इन्वेस्टमेंट की उस पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सो सम और द अदर वे दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द बिजनेस, बट नॉट द होल ऑफ द मनी। पूरा 12 लाख थोड़ी वापस ले लेंगे, अगर सारा लेंगे तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, पैसा ही निकाल लिया सारा। बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ये पैसा इनको रखना पड़ता है बिजनेस में। 12 लाख उधर ही रहेगा, उसके बदले में थोड़े थोड़े अमाउंट में वो प्रॉफिट और सैलरी और इंटरेस्ट लेते रहेंगे। ठीक है जी मैम, फिर पैसे जो है ओनर के हैं, उसकी मर्जी है वो किस इंटरेस्ट पे ले। हाँ जी बेटे, वो ले सकता है। देखो ना, मैं फिर से वही कह रही हूँ, अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है ना, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन, तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहेगा, उसका कहीं किताबों में नहीं आएगा। लेकिन जब इनकम टैक्स अथॉरिटी की रेट पड़ेगी तब पता लगेगा उसको किसने क्या किया। ठीक है, इफ यू वांट टू गो विद द रूल देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल। यू कैन टेक एज मच एज मनी यू कैन, जितना भी पैसा चाहो तुम निकाल सकते हो, बट यू हैव टू गिव लाइक मेक अ रिकॉर्ड। उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पैसा किस बात के लिए निकाला। ऐसे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कोई भी पैसे निकाल रहा है कभी भी। कभी तुम्हारी वाइफ ने निकाल रही, कभी तुम्हारे बच्चे ने निकाले, तुम्हारे भाई ने निकाले, तुम्हारे भतीजे ने निकाल लिए, तुम्हारा बिजनेस तो खाली हो जाएगा ऐसे करके। तो बिजनेसमैन ने, जिसने बिजनेस कंटिन्यू करना है, ही हैज टू कीप मनी इन द बिजनेस। ठीक है, सो ही विल टेक इट आउट इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन सम अदर फॉर्म। ठीक है जी, रिकॉर्ड रखने के पर्पस के लिए ये बताया जा रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड में अगर आपको लिखना है तो कैपिटल में कहाँ लिखोगे, यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी में लिखोगे कि ये हमारी लायबिलिटी है, वी हैव टू पे दिस मनी बैक। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ ड्राइंग्स। दिस इज रिलेटेड पॉइंट, इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ। ड्राइंग्स शायद मैंने आपको अर्लियर बताया भी था ये वाला पॉइंट। ड्राइंग मींस when you withdraw something from the business, आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगा दिया, अगर आप उस पैसे को वापस निकालते हो तो इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस, ड्राइंग्स ऑफ द प्रोपराइटर, ड्राइंग्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ड्राइंग्स। लिखिए एनीथिंग इन कैश और काइंड, ड्राइंग्स में कैश और काइंड दोनों में हो सकता है। Anything in cash or kind, if withdrawn by the proprietor, for his personal use, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस से पैसा निकाल दिया। ठीक है, anything in cash or kind if withdrawn by the proprietor from the business for his personal use is called as drawing। ठीक है, तो अब इस ड्राइंग को क्या करेंगे, कहां लिखेंगे इस ड्राइंग को, कहां लिखेंगे इस ड्राइंग को। फॉर एग्जांपल अभी फिर से बता रही हूं, आपने ऑलरेडी लायबिलिटीज में लिखा था कि मेरी कैपिटल है 12 लाख रुपए की। अब जो आपका ओनर है उसको लगा कि मेरी बेटी की कॉलेज की फीस देनी 50,000, उसने बिजनेस से 50,000 निकाले, अपनी बेटी को दिए, जा अपनी कॉलेज की फीस दे दे। तो बिजनेस से पैसा निकालो, इट मींस उसने इस 12 लाख में से पैसा निकाला होगा। सो जो ड्राइंग होती है वो हम यहाँ माइनस कर देंगे, कहां से, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 50,000। तो आज की डेट में बिजनेस में उसका कितना पैसा लगा है, 11,50,000। सो नाउ हिज कैपिटल विल बी 11,50,000, क्योंकि 50,000 he has withdrew from the business. Is it clear to you, बेटे, all of you? It's very easy. You want to write like this, you can write, no problem. You want to write, you can write. You have understood, I'm sure. Okay, next point it is, इसको रब कर दे, फिर से रब कर दूं इसको, समझ आ गया ना आपको। Okay, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि लायबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो लायबिलिटीज भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटीज।
Now what are the liabilities of the business? What are the liabilities? See, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो पहले liability बता देती हूँ. Liability is the obligation of the business which business has to pay. Liability क्या होती है simple language में? It's the obligation of the business that business has to pay. किसको पे करना है? दो तरह के लोग हो सकते हैं जिसको बिजनेस में पैसा देना है. One can be internal liability जो मैंने अभी समझाई थी, और other can be external liability. इसको लिख लीजिए. There are two types of liabilities. One is internal liability, other is external liability. अब ये internal और external liability क्या होती है? देखो, जैसे internally हमारे ओनर ने हमें पैसा दिया in the form of capital for example, तो that is a internal liability for the business. जो हम वापस करें या ना करें हमारा काम चल सकता है, क्योंकि वो तो अपने मालिक ही है, अपना ही बिजनेस है, अपने मालिक को पैसा देना है, तो कोई बात नहीं, कभी भी दे सकते हैं. नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने तो रिस्क लिया, तो हो सकता है उनका पैसा डूब भी जाए. एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हमारे लिए कंपलसरी है, हमें देने ही पड़ेंगे पैसे. अगर नहीं देंगे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा अगले ही दिन. फॉर एग्जाम्पल द लायबिलिटी विच बिजनेस हैज टेकन फ्रॉम द बैंक. बैंक से लोन ले लिया, वापस किए बिना चल जाएगा काम? बैंक लोन वापस नहीं करोगे चल जाएगा? इट विल नॉट वर्क. आप बैंक का लोन वापस नहीं करोगे तो बैंक आपके ऊपर केस करेगा, कोर्ट कहेगा बंद करो सारी बिजनेस को, बेचो बूचो और हमारे पैसे पे करो इनके. ठीक है. अगर ओनर को कैपिटल आप ऐसा वापस नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, बिकॉज he is the one who has taken the responsibility, he is the one who has taken the risk, he is the one who has already taken profit and salary. तो कुछ पैसे तो वो ऑलरेडी निकाल भी चुका है, तो उसका पैसा नहीं भी देंगे तो चल जाएगा काम. लेकिन अगर बैंक का लोन वापस नहीं करेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा. तो बैंक लोन और सम अदर क्रेडिटर, कुछ और इसकी एग्जांपल्स हो सकती. सिंपल मीनिंग आप इसका लिख लीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन of the business towards its owner or proprietor. बेसिकली बेटे proprietor वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई सिंगल ओनर हो बिजनेस का. ठीक है, तब हम वर्ड यूज करते हैं proprietor. अगर मोर देन वन ओनर्स आर देयर, आप चैप्टर 2 पढ़ रहे हो ना अभी बिजनेस स्टडीज में, अगर मोर देन वन ओनर्स आर देयर दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर बहुत बड़ी कोई कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट वी कॉल देम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स. सो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आर देयर. राइट नाउ हम अभी प्रोप्राइटर ही यूज कर रहे हैं. सो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर और प्रोप्राइटर. फॉर एग्जांपल कैपिटल. और एक्सटर्नल लायबिलिटी में लिख दो, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द आउटसाइड पार्टीज. फॉर एग्जांपल बैंक लोन, क्रेडिटर और लोन फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है जी, डन, क्लियर है? इसके अलावा देयर आर मोर वन लाइक टू मोर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. वो बता देते हैं. इंटरनल और लायबिलिटी एक्सटर्नल के अलावा देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. Non-current liabilities and current liabilities. Now, what is the meaning of these liabilities? See, current word से आपको क्या लग रहा है? What is current? Current means which is going on in present. हम कहते हैं ना current year कौन सा चल रहा है? 2021. ठीक है? Current means which is for Sambhav. Who is this Sambhav? बेटे you have joined just now. संभव क्लास +1 कॉमर्स लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे. You have joined just now. Only 4 minutes are left. I don't think so. 4 minutes, less than 2 minutes are left. You are joining now and then you are not moving yourself. Okay, no problem. Current. So what is the meaning of current? Current means which is going on right now. अभी जो चल रहा है currently, तो वो होती है हमारी current liability. और non current होती है जो current में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है. करंट मींस फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर जो होगा वो करंट होगा, और मोर देन 1 ईयर होगा तो वो नॉन करंट होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको दे देती हूँ. मैं राशन वाली शॉप से हम क्या करते हैं, एग्जांपल है, सच नहीं है. राशन वाली शॉप पे हम जाते हैं, राशन ले आते हैं, पैसा नहीं देते.
फिर जाते हैं सामान ले आते, पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते। हमने उनको बोला है कि एवरी मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ we will pay you the money back, whatever money is like pending, we will pay it back to you. This is called as current liability. Why it is current liability? Because this liability will be paid within a period of 1 year or less. एक साल से कम टाइम में पे कर देते हैं। अगर हम जैसे सप्लायर है, हमें सप्लाई दे रहा है, गुड्स की रॉ मटेरियल दे रहा है, we are paying him after 3 months or 4 months, so that is also part of current liability. Simple language में मैं यहाँ लिख दूं less than 1 year, less than 1 year होगी तो मैं क्या बोलूंगी? current liability. What is non current liability? more than 1 year अगर हो जाएगी तो it will be non current liability. long term में पे करनी है मुझे। for example मैंने कार लोन लिया 5 years का, तो क्या वो current है मेरा? current liability? no, it is a non current liability, मुझे धीरे धीरे long run में पे करनी है। So please write it down. What is the meaning of current and non-current liabilities? ठीक है। और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है जी। मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यू कैन राइट दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस व्हिच इज टू बी पेड इन अ